history repeats itself. This well-known truth applies to any field, and for 3D printing, the case is the same. Just like 2013 patent conflict between 3D printing giant Stratasys and Affinia, Stratasys ने फिर एक स्टार्टअप पर अपने पेटेंट अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. And do you know who's in the question this time? It's Bambu Lab. Yes, you heard that right. Stratasys has accused Bambu Lab of infringing not one, not two, but a total of 10 patents, and the lawsuit has been filed in a Texas court. What's the whole issue? Let's figure it out in this video. I am Dr. Raj Soni and you are watching Dr. Raj Empire. So stay tuned until the end to get the full story on the case filed by Stratasys against Bambu Lab and its associate companies. The 3D printing world is buzzing with a legal battle that could reshape the industry. आज हम Stratasys जो कि 3D प्रिंटिंग की एक बड़ी कंपनी है एंड Bambu Lab जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उनके बीच पेटेंट विवाद पर चर्चा करेंगे. What does this mean for the future of consumer 3D printing industry? Let's find it out. इस वीडियो में Stratasys के एलिगेशंस के की पॉइंट्स, Bambu Lab के संभावित बचाव के तरीकों, the implications for the growing consumer 3D printing market and the most importantly इस विवाद से सीखने वाली बातों पर चर्चा करेंगे ताकि हम भविष्य में ऐसी स्थिति में न फंसे. Stratasys ने Bambu Lab पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज से संबंधित कई महत्वपूर्ण पेटेंट्स के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिनमें शामिल है हीटेड बिल्ड प्लेटफॉर्म्स यूएस पेटेंट नंबर 9592660. यह पेटेंट उन टेक्नोलॉजीज को कवर करता है जो हीटेड 3D प्रिंटिंग बिल्ड प्लेटफॉर्म में उपयोग होती है, विच आर क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग एडिशन ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ अ प्रिंट. Stratasys का दावा है कि Bambu Lab द्वारा इस तकनीक का उपयोग उनके पेटेंट का उल्लंघन करता है. बट द ट्रूथ इज कि नॉट जस्ट Bambu Lab बट आज कोई भी 3D प्रिंटर हीटेड बेड के बिना आता ही नहीं है. Another allegation on Bambu Lab is regarding the Purse towers for multicolor printing, US patent number 9421713. Purse towers multicolor 3D प्रिंटिंग में महत्वपूर्ण होते हैं ताकि नोजल में फिलामेंट रंगों को मिलाने से रोका जा सके. Stratasys का तर्क है कि Bambu Lab की ऑटोमेटिक मटेरियल सिस्टम जो AMS बोली जाती है, which enables seamless filament switching, uses Purse towers in a way that infringes on their patent. Next allegation on Bambu Lab is regarding to use extrusion-based deposition systems, US patent number 7555357. The patent describes the systems that extrude thermoplastic materials in a controlled manner to build objects layer by layer, which is fundamental to FDM technology. It also outlines methods for optimizing the path followed by extrusion head, which is crucial for ensuring efficient material use, minimizing printing time, and achieving high quality prints. Next allegation on Bambu Lab is regarding to network 3D printing and filament detection. Total 5 patents are noted in this allegation. यह patents 3D printers में नेटवर्क कनेक्टिविटी और RFID डेटा टैग्स के माध्यम से फिलामेंट प्रॉपर्टीज की डिटेक्शन के संबंधित है. Stratasys का तर्क है कि Bambu Lab के वर्तमान मॉडलों में नेटवर्क सिस्टम और फिलामेंट डिटेक्शन का उपयोग उनके पेटेंट का उल्लंघन करता है. नेक्स्ट एलिगेशन ऑन Bambu Lab इज रिगार्डिंग टू हॉट एंड मटेरियल फ्लो प्रेशर सेंसर, पेटेंट नंबर 9168698 एंड 1055638. These patents cover innovation related to eddy current force sensor used to detect a force caused by nozzle clumping and to automatically stop the print job based on this detected force. Bambu Lab printer के hot end पर sensors होते हैं which detect nozzle clumping and regulating flow of material to improve product quality. What if Bambu Lab is forced to surrender the technology it has developed due to patent infringement claims? It would be like breaking a horse leg and expecting it to race, जो कि निरर्थक होगा, right? Such a setback would push 3D printing technology back to where it was 5 years ago, erasing significant progress in the field of 3D printing technology. How could Bambu Lab defend? Bambu Lab तर्क दे सकता है कि उनकी तकनीक Stratasys के पेटेंट्स का उल्लंघन नहीं करती है या कि इन पेटेंट्स को प्रायर आर्ट के आधार पर अमान्य घोषित किया जाना चाहिए. वे दिखा सकते हैं कि Stratasys के पेटेंट दाखिल होने से पहले समान टेक्नोलॉजीज मौजूद थी. Bambu Lab यह तर्क भी दे सकता है कि उनकी तकनीक जबकि समान है, Stratasys के पेटेंट का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि उनके इम्प्लीमेंटेशन में अंतर है. वे डिटेल टेक्निकल कंपैरिजंस प्रस्तुत कर सकते हैं
ताकि यह दिखाया जा सके कि उनका दृष्टिकोण पेटेंट की गई विधियों से काफी अलग है। बाम्बू लैब यह तर्क भी दे सकता है कि स्टेटासिस के पेटेंट्स को लागू करना व्यापक 3D प्रिंटिंग समुदाय को नुकसान पहुंचाएगा, इनोवेशन को रोक देगा और अफोर्डेबल 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस के एक्सेस को सीमित करेगा। This could appeal to the core science of public good, particularly in a rapidly growing and evolving industry like 3D printing. वैसे बाम्बू लैब के साथ विवाद में स्टेटासिस के पेटेंट को लागू करना पूरी तरह से अनुचित भी नहीं है। कम्पिटिटिव एडवांटेज और इनोवेशन बनाए रखने के लिए उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए अपने बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना आवश्यक है। इसके अलावा पेटेंट की गई टेक्नोलॉजीज पर नियंत्रण बनाए रखना लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री स्टेबिलिटी में मदद करता है और प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस को सुनिश्चित करता है, जिससे स्टेटासिस को लाइसेंसिंग रेवेन्यू के माध्यम से फ्यूचर इनोवेशंस को फुलफिल करने में और फंडिंग करने में सहायता होगी, जो व्यापक 3D प्रिंटिंग इकोसिस्टम को ही बेनिफिट करेगा। लेट्स नाउ डिस्कस द इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्रोइंग कंज्यूमर 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री। यदि स्टेटासिस जीतता है तो यह एंट्री लेवल 3D प्रिंटर निर्माताओं के लिए सख्त नियंत्रण और उच्च बाधाओं का कारण बन सकता है, जिससे कंज्यूमर 3D प्रिंटिंग में इनोवेशन को दबाया जा सकता है और कंपटीशन को भी कम किया जा सकता है, विशेष रूप से मल्टी मटेरियल प्रिंटिंग और नेटवर्क 3D प्रिंटर सिस्टम जैसे क्षेत्रों में। दूसरी ओर यदि बाम्बू लैब जीत जाता है तो यह बाजार में अधिक नए खिलाड़ियों के प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आगे की इनोवेशंस और उसकी कीमतों में कमी आएगी। हाउ विल लोकल 3D प्रिंटर यूजर्स बी अफेक्टेड? यदि बाम्बू लैब अपने मौजूदा मॉडल बेचने में असमर्थ होता है तो कंज्यूमर्स को उच्च कीमतों और कम विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से उन हॉबीज और स्मॉल बिजनेसेस को प्रभावित कर सकता है जो कि किफायती और हाई क्वालिटी 3D प्रिंटर्स पर निर्भर है। यदि निर्णय 3D प्रिंटिंग में पेटेंट के स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट की ओर जाता है तो यह DIY और ओपन सोर्स कम्युनिटीज में एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशंस को खत्म कर सकता है। की लर्निंग्स फ्रॉम दिस डिस्प्यूट: इनोवेटर्स एंड कंपनीज entering the 3D printing space must conduct comprehensive patent searches and analysis ताकि उनके उत्पाद अनजाने में भी मौजूदा पेटेंट का उल्लंघन न करें। इससे भविष्य में कॉस्टली लीगल बैटल्स से बचा जा सकता है। यदि कोई नया उत्पाद मौजूदा पेटेंट से ओवरलैप करता है तो कंपनियों को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स पर विचार करना चाहिए, जो उन्हें तकनीक का कानूनी रूप से उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जिससे पेटेंट उल्लंघन के दावों से बचा जा सके। मुख्य बात यह है कि इनोवेशन की सीमाओं को बढ़ाते हुए दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाए रखें। कंपनियों को ऐसे नए सॉल्यूशंस विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मौजूदा टेक्नोलॉजी से स्पष्ट रूप से भिन्न हो। हाउ टू अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन लाइक दिस: नए उत्पाद को लॉन्च करने से पहले व्यापक पेटेंट रिसर्च करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके इनोवेशंस मौजूदा IP का उल्लंघन नहीं करते। यदि आपकी तकनीक मौजूदा पेटेंट से करीब है तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स को एक्सप्लोर करें that allow you to legally use the necessary technologies. Focus on genuine innovation and ensure your developments are distinctly different from existing technologies to avoid legal complications. So, this legal battle is a reminder of complexities in the tech world, especially in rapidly evolving fields like 3D printing. Whether you are a hobbyist, a startup, or an industry giant, it's crucial to navigate the landscape carefully. Stay innovative, stay informed, and as always, keep 3D printing. If you found this video useful, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell for more insights into the world of 3D printing and additive manufacturing. See you in the next video on the Dr. As Empire.